ملتمس ہوں کہ اپنے گاؤں کے لوگوں سے اپنے کچھ دو چار کلمات جو ہیں وہ بھی ادا کریں. اتنا اچھا، اور میں حیران تھا کہ نیا اسکول ہے اور پبلک آپ سے اتنی اس قدر راضی ہے، ورنہ سارے کو کمپٹیشن کا ماحول بن جاتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے. تو تشریف لاتے ہیں آپ کی بھرپور تعلیوں میں این آر او اسکول سسٹم 18 چک کے پرنسپل جناب حافظ محمد اویس کرنی صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام، زینت عرش معلا الصلاة والسلام. مومنوں پڑھتے کیوں نہیں تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور میرے این آر او اسکولز کے پرنسپلز حافظ محمد نوید اقبال صاحب اور ان کے ساتھ آئے ہوئے ان کے اسٹوڈنٹس اور ان کی ٹیچرز کا اسٹاف، میں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. چند ضروری گزارشات آپ سے کرنی ہے. کچھ لینتھی یا لانگ تقریر یا بیان کرنے کا ذہن نہیں ہے، کیونکہ تقریباً کل سے میں ہی جو ہے آپ کے اس پروگرام کے لیے، مینجمنٹ کے لیے نام سویا صرف آپ کے علاقے کے لیے، آپ کے گاؤں کے لیے، یہ صرف آپ کے لیے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ اپنی تعریف کے لیے یہ میں جملے کہہ رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ صرف اللہ کا فضل ہے، والدین کی دعائیں ہیں اور آپ احباب کی دعا ہے. یقیناً والدین بیٹھے ہیں. آج اگر یہاں اس اسٹیج پہ میں کھڑا ہوں، اس مقام پہ کھڑا ہوں، آج اسکول کا آغاز ہے یا یونیورسٹی میں پڑھا، کالج میں پڑھا، جامعہ المدینہ میں دین کی تعلیم بھی حاصل کی، الحمدللہ ڈبل ایم اے ہونے والا ہے، یہ فضل اور کرم صرف میرے والدین کی دعاؤں کا. رسول کریم علیہ السلام کی محبت ہے کہ اللہ پاک کا مجھ پہ بہت ہی خاص کرم ہے. عزیز دوستو، آپ کے سامنے ہے تقریباً 6 منتھ کے قریب مجھے یہاں ہو گیا، آپ کے درمیان عرصہ گزارا، مسجد میں امامت بھی کروائی، آپ کے بچوں کو بھی پڑھایا، خطاب، بیانات، یہ سارے سلسلے بھی رہے. اور آپ لوگوں کی خواہش پر ہی یہاں سکول کا آغاز کیا گیا کہ کیوں نہ ہو ہمارے اس گاؤں میں سکول کا آغاز کیا جائے، تاکہ ہمارے بچوں کو اور بالخصوص بچیوں کو تحفظ دیا جائے. کیونکہ یہاں سے آنا جانا، پھر بچوں کو لے کر آنا، پھر چھوڑنے جانا، پھر ان کی فیسز، پھر رکشے کے کرایہ جات، پھر اس کے علاوہ سب سے بڑی جو مین مسئلہ اور پرابلم ہے وہ ہے ہماری بچیوں کا تحفظ. دور جائیں گی، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے بچیوں کو تحفظ ملے یا نہ ملے، اس ادارے میں کیا ہو رہا ہے یہ نہیں پتا. رستے میں جائیں گی، کسی کی بری نظر نہ دیکھے تو کسی کو کوئی پتا نہیں تحفظ ہے یا نہیں. الحمدللہ اس علاقے میں سکول کھلا تو اس کا مین مقصد جو تھا وہ ہے ہماری بچیوں کا تحفظ. آج ہمارے سکول میں سے ہی بچیوں نے یہاں آپ کے سامنے بہت اچھے انداز میں بیانات بھی کیے. ان میں سے پارسہ بطول نائٹ کی جو انگلش میں سیرت النبی کے مقام پر موضوع پہ آپ کے سامنے جزاک اللہ خطاب کیا، اور پھر ابیہ فاطمہ بیٹی کے موضوع پہ آپ کے سامنے تقریر کی. تو الحمدللہ یہ 2 منتھ کا نتیجہ ہے آپ کے سامنے. یہ 2 منتھ ہوئے ہیں، سکول کا آغاز کیا ہے. آج تو باقاعدہ آپ کے سامنے کی افتتاح اس لیے رکھا گیا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہمارے بچوں کو صرف تعلیم نہیں بلکہ تربیت بھی دی جا رہی ہے. آج ہمارے ملک میں ٹوڈے there is a own law of education in our country. آج ہمارے ملک میں تعلیم کی کمی نہیں ہے. نسبت صاحب یا بابا صاحب صاحب بیٹھے ہیں، مظفر بھائی ہیں، پرویز بھائی ہیں، آپ صاحب، ہمارے ملک میں تعلیم کی کمی نہیں ہے. اگر کمی ہے there is a only lack of، اگر کمی ہے مورلز کی کمی ہے، کریکٹر کی کمی ہے، بیہیویئر کی کمی ہے. اگر کمی ہے تو اچھے اخلاق کی کمی ہے. آپ کے سامنے ہے ہمارے بچے جاتے
हम लाखों फीसें खर्च करते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, लेकिन वो कॉलेजेस में जाने वाले, वो यूनिवर्सिटीज में जाने वाले, वो PhD, वो MA करने वाले जो है, जब निकलते हैं तो वालिदैन का कोई एहतराम नहीं होता। जब आते हैं तो बुजुर्गों का कोई एहतराम नहीं, जब आते हैं तो छोटों से प्यार नहीं। लेकिन अजीज दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात का आपको यकीन दिलाता हूँ और आपका अतमाद और कॉन्फिडेंस अगर मुझ पर है तो इंशाल्लाह आपके अदारे में ना सिर्फ तालीम दी जाएगी बल्कि बच्चों की तरबियत की जाएगी। और आपके बच्चे घर जाएंगे तो आपके हाथ पांव चूमेंगे, आपके बच्चे घर जाएंगे तो अच्छे अखलाक के साथ बोलेंगे, आपके बच्चे घर जाएंगे तो जब बड़े आएंगे खड़े हो जाएंगे, उनको बैठने के लिए जगह देंगे। छोटे बच्चे होंगे तो उनका अदब व एहतराम, उनसे प्यार करेंगे। ये है मेरा मेन मकसद जो इस स्कूल में मैंने तालीम का आगाज किया। मेन मकसद आपसे कोई लालच नहीं कि आप मुझे गंदम देंगे, आप मुझे ईद में इतने पैसे देंगे, आप मुझे सालाना इतनी तनख्वाह देंगे, माहाना इतनी मंथली देंगे। सबके सामने मेरा रिजल्ट है 6 माह का। अगर किसी को दूसरी बार मैंने कहा हो तनख्वाह दे, मैंने कभी किसी को नहीं कहा, क्योंकि अल्लाह का करम है, जो नसीब में है वो मिल जाना है, वो गैप से भी आ जाना है। इसलिए कभी किसी का मैं मोहताज नहीं, मैंने कभी अपने घर वालों को नहीं कहा मुझे पैसे दे। ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह पाक करम फरमा देता है। तो चंद गुजारिशात जो आपसे करनी है वो अपने बच्चों को दाखिल करवाएं। इंशाअल्लाह आपके बच्चों को अच्छा इखलाक मिलेगा और हमारे प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम अच्छे अखलाक के लिए भेजे गए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि आपका इखलाक क्या है, तो आपने फरमाया आपका इखलाक जो है हमतन कुरान है। अब देखें आपके अदारे में, आपकी मस्जिद में, आपके स्कूल खोलने वाले जो टीचर हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो दीन की तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम से ही मुस्ताफिद हैं। आपके बच्चों को तिलावत कुरान की तालीम दी जाएगी, नाज़रा कुरान की तालीम दी जाएगी, तर्जमातुल कुरान की तालीम दी जाएगी, तजवीद करवाई जाएगी। उसके अलावा आपकी बच्चियों को मजीद ज़रूरी मसाइल वो सिखाए जाएंगे और इसके अलावा और बहुत कुछ है जो इंशाअल्लाह आपको मैं, जो मेरे ख्वाब है, ड्रीम है, हर बात आपके सामने बयान नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह हमारे प्रोग्राम होते रहेंगे, हर साल आपके सामने रिजल्ट होगा, हर साल कुछ ना कुछ नया सोचेंगे इस बस्ती के लिए, इस इलाके के लिए, इस मस्जिद के लिए। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी रही तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह इस बस्ती में जो है वो स्कूल भी होगा, तो इंशाअल्लाह अस्पताल भी होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से होगा, सब कुछ ही होगा, सारी सहूलियात आएंगी। मुझे आपसे कोई तवक्को नहीं कि आप इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, अल्लाह का फजल है। अगर अच्छी नीयत बंदी की हो तो उस अच्छी नीयत पर इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। जो दिल में नियत होती है उसके अमल का सवाब मिलता है। इसलिए अगर आपकी अच्छी नियत हुई, मेरी अच्छी नियत हुई, फिर आपका ताउन और मेरा ताउन और स्टूडेंट्स का ताउन बरकरार रहा तो यकीनन बच्चे जो है कामयाब भी होंगे और मुल्क में नाम भी रोशन करेंगे। वही अदारा कामयाब होता है जिसका राबता मजबूत रहता है। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, इन तीनों के जब राबते रहते हैं तो फिर बच्चा कामयाब होता है। तो अजीज दोस्तों, आखिर में यही कहूँगा, वो एक बच्ची के बारे में सुना कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, उस बच्ची ने पंजाब में टॉप किया। अब पूछा वजह क्या है, बच्ची ट्यूशन भी नहीं पढ़ती, अब साहब बच्ची अकेडमी भी नहीं पढ़ती, सिर्फ स्कूल के टाइम क्या आ रही है 3-4 घंटे, और उसकी बरकतें क्या है कि वो बच्ची ने टॉप किया। वो सारे अहले मोहल्ला, वो जो दूर दूर से अहबाब आए सियासी, उसके घर चले गए। पूछा वजह क्या है, इसके वालिदैन से पूछते हैं। अब जब घर गए तो वालिद तो पहले इंतकाल कर चुका था, माँ थी, माँ से पूछा माजरा क्या है, बच्ची ने टॉप किया, इतनी ज़हीन बच्ची है आपकी, इतने नंबर ले लिए उसने, ये क्या वजह है? उसने कहा बात ये है, मैं पढ़ी लिखी नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन जब मेरी बेटी घर आती थी तो मैं इसको कहती थी बेटा पढ़, जो स्कूल से मिला है याद कर, याद करके इसको लिख और मुझे दिखा। कहते हैं बेटी लिखती मुझे दिखाती, मैं क्योंकि पढ़ तो सकती नहीं थी, मैं कहती बेटी जो गलतियां हैं किताब से देख लो, मैं बिजी हूँ और अपनी गलतियों को दुरुस्त कर लो। कहते रोजाना इसी तरह उस माँ की तरबियत की वजह से उस बच्ची ने टॉप कर लिया। मानो अगर वालिदैन का तामुन है, सिर्फ उस्ताद की तरबियत करने से या उस्ताद के तामुन करने से या उस्ताद की तालीम देने से कुछ नहीं होगा, जब तक वालिदैन बच्चे को अच्छा माहौल नहीं देंगे। वो कहते हैं ना आदतें नस्लों का पता देती हैं, आदतें नस्लों का पता देती हैं। जिस तरह बच्चों का बिहेवियर, जिस तरह उनका करैक्टर, जिस तरह का मोरल, जिस तरह का अखलाक उनका घर में होगा वो बाहर भी उसी तरह का करेंगे।
क्योंकि दायरे में तो 3-4 घंटे वो आएंगे, तो घर में तो 18 घंटे वो रह रहे हैं। तो घर में अगर गालियों का माहौल है तो बच्चा भी गालियां निकालेगा। घर में अगर वालिदैन झूठ बोलते हैं तो बच्चा भी बाहर झूठ बोलेगा। घर में अगर जो है हम वादा खिलाफी करते हैं, लोगों से वादा करते हैं, कारी साहब आपको ना 5 तारीख को इंशाल्लाह तनख्वाह मिलेगी, पैसे दे देंगे, वादा कर लिया। कारी साहब बच्चों की फीस है मैं 10 तारीख को शाम को इंशाल्लाह दे दूंगा, वादा कर लिया। लेकिन जब वो तारीख आती है ना वो फीस दिखती है ना वो बंदा दिखता है। अब देखें वो वादा खिलाफी, वो झूठ, ये कहां से मिल रहा है? घर से मिल रहा है। और जब वालिदैन ही झूठ बोल रहे हैं, जब वालिदैन ही वादा खिलाफी कर रहे हैं, जब वालिदैन के ही अंदर एहतराम और इखलाक अच्छा नहीं तो बेटों में कैसा आएगा, बच्चों में कैसा आएगा? हम कहते हैं कारी साहब बच्चा ना बस पढ़ लिख जाए, अच्छा बन जाए, बड़ा ऑफिसर बन जाए, नेक बन जाए, नमाजी बन जाए। लेकिन खुद का हाल ये है, मस्जिद है आपके सामने है, रमजान के दिन भी होते थे 2-4 नमाजी होते थे, अभी दिन है तो कभी एक नमाजी है कभी कोई नमाजी नहीं। ये अफसोस की बात है, आपके लिए इल्मिया है बहुत बड़ा। अगर वालिदैन नेक होंगे औलाद नेक होगी, वालिदैन नमाजी होंगे औलाद देख के पढ़े कि मेरा अब्बू मस्जिद में जा रहा है मैं भी जाऊं, उसको डर होगा, खाली उस्ताद के करने से नहीं होगा। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, अगर चाहते हैं हमारा स्कूल कामयाब हो जाए, हमारी मस्जिद आबाद हो, हमारे बच्चे पढ़ जाए, तो आपसे ये गुजारिशात हाथ जोड़ के करता हूँ, आप भी ताउन हमारे साथ करें। आपका ताउन ये करना नहीं कि मुझे आप पैसे दें, आपका ताउन ये करना है आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, उनको इस्तिकामत के साथ दीन की तरफ लगाएं। और मेरी माएँ बहनें खुद भी नमाजों का एहतमाम करें, घर में पर्दे का एहतमाम करें, अखलाक का एहतमाम करें। बीवियाँ हैं तो शोहर की खिदमत करें। मैंने जुम्मे बयान किया बीवी के हवाले से, कुछ ने कहा कारी साहब बंदों के हवाले से भी कुछ कह दें। बीवी तो अगर बद इखलाकी करेगी तो जहन्नम में सफर का ज़बान लंबी कर दी जाएगी, लेकिन बंदों का भी कुछ बताएं। मैं कहा बात ये आप है बीवी, तो आपके ऊपर जो हकूक वाजिब है शोहर के हैं, अगर शोहर हक नहीं अदा करता तो अल्लाह पूछने वाला है। आप कौन होती है पूछने वाली? आप तो अपना हक अदा करें, कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, घर में मेहमान आ गए, खाना पकाना, तो आप तो अपने हकूक अदा करो। इसलिए मेरी माएँ बहनें बेटियां बैठी हैं, उनसे गुजारिश है घर में अच्छा माहौल बनाएं, घर में तिलावत कुरान करें। जिस घर में सुबह तिलावत कुरान होती है वहाँ अल्लाह की रहमतों का बरकतों का नज़ुल होता है। मैं फिर एक बार आप सब का अहले मोहल्ला का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए, यहाँ तशरीफ लाए, और जितने भी मेहमान आए, मेरे कुछ घर से अहबाब आए, रिश्तेदारों में से आए, दोस्त अहबाब आए, मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे जो कुछ स्टूडेंट्स भी खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास पढ़ते रहे हैं, एक काल की है तो आ गए हैं, तो अब आप आगे बात कर रहे कि शागिर्द पहले उस्ताद बाद, लेकिन हमें ये सिखाया कि उस्ताद का अदब बड़ा है, बादब बानसीब। जब उस्ताद ने कह दिया बेटा मैं, तो फिर शागिर्द की मजाल नहीं आगे हो जाए, क्योंकि उस्तादों की वजह से सब कुछ मिलना है, उनकी दुआओं से कुछ मिलना है। आज अदब करेंगे तो कुछ मिलेगा, अगर अदब नहीं तो कुछ भी नहीं, चाहे PhD कर दी है। और जी दोस्तों अच्छा इखलाक बनाएं, अच्छा माहौल बनाएं, दुआ अल्लाह पाक हमारे इस अदारे को कामयाब करे। मैं फिर एक बार हाफिज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि NR स्कूल के प्रिंसिपल हैं, इनसे हमारे इदारे का जो है वो इल्हाक किया गया है। इंशाल्लाह हमारा जो बिल्डिंग का मामलात हैं वो भी जल्द ही कामयाब होंगे, दुरुस्त होंगे, इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, और ऐसी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी इंशाल्लाह कि अगर कारी साहब इंतकाल भी कर जाएं, मर भी जाएं तो आपका स्कूल कायम रहेगा, बच्चे पढ़ते रहेंगे और मुझे इंशाल्लाह सवाब मिलता रहेगा। वो कहते हैं ना सूरज बनकर रोशनी बखेर जाऊंगा, सूरज बनकर रोशनी बखेर जाऊंगा, अगर मैं डूब भी गया तो सुर्खी छोड़ जाऊंगा। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप बहुत जिएगा सर।